Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is our day 8 of 60-day challenge. This is a special class for all entrance exam of mathematics. Every day we discuss the 10 important question of CSIR, NET, IIT JAM, GATE and NBHM. So as usual, we discuss today the 6th question of linear algebra, 2 question from modern algebra and 2 question from COV, that is calculus of variation. Now the first question is question number 71. Let A is a matrix of n cross n complex matrix and let A star denote the conjugate transpose of A. Which of the following statement are necessary to? Now this question is related to the conjugate of A. Now what is a conjugate? It is denoted by A star, that is the conjugate transpose. Means first we take the transpose of matrix, then take a conjugate of that matrix is nothing but the A star, that is called a conjugate of matrix A. Now here the first option is A is invertible, then we say that the trace of A star A is 0 or not. Second is if trace of A star A is equal to 0, not 0, then we say that the determinant of A is non-zero. Means this question is related to the transpose of trace of A star into A. So first we find the A star into A. So here matrix, order of matrix is n cross n. There is a no condition, so we take n is equal to 2 and check all the options. Okay, first we find the transpose of A star A. Now solution number 71. Let's suppose n is equal to 2. Now take an example of 2 cross 2 matrix, that is A, B, C, D. Means इसमें करना क्या है कि हमें ट्रांसपोज ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए के बारे में चेक करना है कि अगर उसका ट्रेस 0 होगा तो उसकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में क्या कह सकते हैं, अगर इन्वर्टिबल है तो उसके ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रेस ऑफ ए स्टार ए के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है. तो फर्स्ट वी टेक द मैट्रिक्स ए इज ए बी सी डी. नाउ इफ यू टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वी विल गेट ए बी सी डी and take the transpose, and this is nothing but a star. Now if you taking the conjugate we get A conjugate C conjugate this. Now we have to multiply A conjugate with A or A star with A. We get mod of A square plus mod of B square A into, that is A into A bar, and A into A bar is nothing but a mod of A square, since we know that कि A into A conjugate is nothing but the modulus of A square. Similarly A into C bar plus B into D bar. Here C into A bar plus D into B bar, and the last entry is C into C bar, that is modulus of C square and modulus of D square. But we need only the diagonal element because we have to find the trace of A star A. Means हमें सिर्फ ट्रेस निकालना है A star A का, तो वो क्या होगा, diagonal element का sum, that is the sum of diagonal element, that is A square modulus of A square plus modulus of B square modulus of C square plus modulus of D square. अब सपोज ट्रांसपोज ट्रेस ऑफ A स्टार A इज इक्वल टू 0. अब हम ये चाहते हैं कि ट्रेस ऑफ A स्टार A 0 हो जाए, दैट इज मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ D स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब अगर हमारे पास 4 वैल्यू है और उसका सम स्क्वायर करके सम लिखना है तो 0 आना चाहिए, बट यहां पे
सारे वैल्यू पॉजिटिव है और एडिशन करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर इन सारे वैल्यू का सम चाहिए, दैट इज बाय एडिंग वी वांट अ वैल्यू 0, तो देयरफॉर द ओनली चॉइस इज ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ रिजल्ट कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज इक्वल टू 0, then ABCD is equal to 0 and ABCD is equal to 0, that means matrix A is a zero matrix. मीन्स अगर ट्रेस A स्टार A 0 है रहा तो मैट्रिक्स हमारा 0 होगा, या फिर ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर मैट्रिक्स 0 है तभी पॉसिबल है कि ट्रांसपोज ऑफ A स्टार A 0 होगा, और अगर ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ A स्टार A 0 है इसका मतलब मैट्रिक्स 0 है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। अब यहां से हमारा डी ऑप्शन तो डायरेक्ट राइट हो गया कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ए अगर 0 है तो दैट मीन्स ए इज अ 0 मैट्रिक्स। सेकेंड, अगर ए इन्वर्टिबल है तो देन ट्रेस ऑफ ए स्टार ए नॉन 0 होगा। अब ध्यान से समझो, ए इज इन्वर्टिबल, इफ ए इज इन्वर्टिबल, if A is invertible, that means determinant of A is equal to non-zero. Since A is invertible, that means determinant of A is non-zero. That means A is non-zero matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये तो पक्का है कि मैट्रिक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। अब मैट्रिक्स नॉन जीरो है, इसका मतलब कभी भी जो ट्रेस ए स्टार ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ट्रेस ए स्टार ए तभी 0 होगा जब मैट्रिक्स 0 होगी। बट यहां पे तो मैट्रिक्स नॉन जीरो है, इसका मतलब ट्रेस ए स्टार ए कभी 0 नहीं हो सकता, और ऑप्शन 1 यही तो कह रहा है। हियर द ऑप्शन 1 इज से दैट कि इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज नॉन जीरो, एंड दिस ऑप्शन इज राइट। सेकेंड वन इज इफ ट्रेस ऑफ ए स्टार इज नॉन जीरो, कि अगर ट्रेस ए स्टार ए नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज एक मैट्रिक्स को सपोज आप ले सकते हो 1 0 0, तो अगर हम इसका ट्रांजुगेट निकालेंगे तो आई थिंक फिर से ये मैट्रिक्स आएगा। तो अगर हम ए स्टार ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर कैसे आएगा, फिर से वही मैट्रिक्स आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, बट अगर हम ए ट्रांजुगेट ए का ट्रांसपोज ट्रेस निकालेंगे तो नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि 1 आ रहा है। अगर हम सपोज यहां से ट्रेस ए स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, बट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बट ये कह रहा था कि नॉन जीरो मिलेगा, अगर ट्रेस ए स्टार ए नॉन जीरो है तो डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, बट ये तो जरूरी नहीं है। इट मे भी हो सकता है कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज नॉन जीरो बट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। नाउ द ऑप्शन नंबर सी, हियर ऑप्शन नंबर सी इज इफ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए, द मॉडुलस ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज लेस देन एन स्क्वायर, देन at least one entry for some means there exists a one element such that their modulus is less than 1। तो यहां पे अब हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2, दैट मीन्स एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कह रहा है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी कि ट्रेस ऑफ लेस देन 4 है, क्योंकि द ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज लेस देन 4। यही तो कह रहा है कि द ट्रेस ऑफ ए स्टार जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी लेस देन एन स्क्वायर। अगर ये है, सपोज हम इसका मॉड ले लें तो ये लेस देन 4 होगा, तो एटलीस्ट एक वैल्यू यानी कि ए बी सी डी में से एक तो ऐसी वैल्यू, चाहे वो ए हो या बी हो या सी डी हो, सच दैट कि जिनका मॉडुलस लेस देन 1 होगा। अब वो ए भी हो सकता है, बी सी डी, मतलब एटलीस्ट 1 वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम कॉन्ट्रडिक्शन लेंगे। सपोज पॉसिबल कि ए बी सी डी हर एक का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है।
अब हर एक का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स mod of a प्लस mod of b प्लस mod of c प्लस mod of d इज ग्रेटर देन 4 होगा, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 1, 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 मतलब ग्रेटर देन 4। बट हमने पहले एज्यूम किया था कि mod of a, mod of b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, इनका सम तो लेस देन 4 है, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट फॉर सम ij सच दैट कि a और b c d में से एक तो ऐसी वैल्यू होगी जिसकी एंट्री लेस देन 1 होगी, मतलब मॉडुलस ऑफ देयर एग्जिस्ट सम a सच दैट द मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। तो ए सी डी ऑप्शन आर राइट, ओनली बी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्ट है। तो टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन डाला था, इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना। सॉल्यूशन नंबर 72। पहले तो आपको ये याद रखना है कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो रैंक ऑफ a हमेशा लेस देन होगा मिनिमम ऑफ mn से। mn में से जो भी मिनिमम होगी उसके मिनिमम से लेस देन मैट्रिक्स a ही होगा, मतलब a का जो भी रैंक होगा वो m और n के मिनिमम से कम होगा। एक रिजल्ट ये। सपोज ए मैट्रिक्स है, सपोज किसी ऑर्डर का m क्रॉस n, बी एक मैट्रिक्स है सपोज n क्रॉस p ऑर्डर का। तो रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ये भी एक रिजल्ट है। और थर्ड रिजल्ट याद रखना है सम पे। तो सम और डिफरेंस के लिए सेम है कि रैंक ऑफ ए प्लस माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी एंड ऑलवेज ग्रेटर देन द मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए, दैट इज डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ ए। तो ये रिजल्ट है। तो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इक्वल होगा कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी, बोथ ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट फॉल्स है क्योंकि इक्वल तो नहीं हो सकता। तो अभी हम काउंटर एग्जांपल से सब डिस्प्रूव करेंगे। अब यहां पे कह रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन, तो ये रिजल्ट ट्रू है। बाकी सी ए सी और डी ऑप्शन रॉन्ग होंगे, तो हम इसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट याद रखना है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, द रैंक ऑफ ए प्लस माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि रैंक ऑफ ए प्लस माइनस बी हमेशा लेस देन होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से, और हमेशा ग्रेटर देन होता है द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर रैंक। तो बाकी को एलिमिनेट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 -1, और एक बी एक मैट्रिक्स लेते हैं सपोज -1 0 1। ये दो मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? ए मैट्रिक्स का रैंक क्लियरली 2 है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। बी मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे तो ये भी 2 होगा। पहला रिजल्ट क्या कह रहा था कि द रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो मतलब रैंक ऑफ ए कितना है 2 और रैंक ऑफ बी कितना है 2, तो ये रैंक ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होना चाहिए। मतलब किसके इक्वल होना चाहिए? इस दोनों मैट्रिक्स के एडिशन। अगर मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये 0 मैट्रिक्स होगा, और 0 मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है 0। क्या 0 4 के इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन तुम्हारा राइट था कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन, तो यहां से भी रिजल्ट ट्रू हो रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू लेस देन 4 है। सेकेंड रिजल्ट ये कह रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू इज इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। बट यहां पे रैंक ऑफ ए प्लस बी कितना है
0, रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ बी 2 है, तो मिनिमम भी 2 होगा, तो क्या 2 0 के इक्वल है? नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो सिमिलरली ए प्लस बी, अगर यहां पे हम सपोज मैक्सिमम भी ले लें तो भी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी 2 2, तो मैक्सिमम क्या होगा 2, बट यहाँ पे 0, 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गई ये सिंपल एग्जांपल से। और हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि द रैंक ऑफ ए प्लस माइनस, और ये दोनों के लिए ट्रू है कि रैंक ऑफ a plus minus b is always less than rank of a plus rank of b and greater than the modulus of difference between their rank. तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द क्वेश्चन नंबर थर्ड is related to the system of equation and this is system of linear equation, non-homogeneous लीनियर इक्वेशन, बिकॉज राइट साइड में 0 नहीं है, मतलब ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस है। तो सपोज सॉल्यूशन 73 ax b सच दैट b इज नॉन जीरो। ये सपोज हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन हम एक एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे ए बार बी। रिजल्ट नंबर 1, रैंक ऑफ ए is equal to rank of augmented matrix is equal to n, where n is number of equation. अगर a रैंक ऑफ augmented matrix के इक्वल है और किसके इक्वल होना चाहिए? जितने नंबर ऑफ इक्वेशन, देन यूनिक सॉल्यूशन। तो हमेशा कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा? हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा और यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बट लेस देन ए, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जो केस नंबर थर्ड है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, देन नो सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो 3 केसेस होंगे। देयर आर 3 केसेस, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, देन यूनिक सॉल्यूशन, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बट लेस देन एन, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। And if rank of A is not is equal to rank of augmented matrix, then we say that there is a no solution. Now here we want infinitely number of solution for which value of k there is an infinite number of solution. Now if we write this matrix in matrix form, this system of linear equation in matrix form, ax is equal to b. So here a is nothing but 1 1 1 and 2 3 minus 1 2 3 minus 1 and last row is 1 2 minus k 1 2 minus k. This is x y z and b is 1 5 4. Now take augmented matrix that is A B 1 1 1
2 3 minus 1 1 2 minus k 1 5 4. Now for infinitely many solution, the rank of matrix A and matrix augmented matrix is equal and less than, here how many equation? 3. So less than 3. Now by using row transformation, that is row 2 minus 2 row 1 and row 3 minus row 1, we get is equivalent to 1 1 1 1, 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, minus 1 minus 2 minus 3, 5 minus 2 3, and here 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, minus k minus 1, that is minus k plus 1, 4 minus 1, it is 3. Now again row 3 minus row 2, we get 1 1 1, 0 1 minus 3 3, 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, 3 minus 3 0, and now here this entry 0, this entry 0, this entry, this must be 0. Then this entry must be 0 because we want a infinitely many solution. For that, the rank of augmented matrix and rank of A is must be less than 3. So that's why this entry must be 0. That means minus k plus 1 minus and this minus is 0. तो ये एंट्री 0 होना चाहिए. तो अगर हम इसे राइट साइड में लेके आए यानी कि k प्लस 1 की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि k इज इक्वल टू 2. मतलब k के प्लेस पे अगर 2 पुट करेंगे, इफ वी पुट इन प्लेस ऑफ k इज इक्वल टू t, वी गेट अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए बी डी रॉन्ग हो गया. क्वेश्चन नंबर 74. लेट V1 to solve up to V16 be a order basis for V is equal to C raised to 16. If T is a linear transformation on V defined by T of Vi is equal to Vi plus 1 for I is between 1 to 15. एंड यहां पे एक और कंडीशन है, शायद लिखा नहीं है. तो T of V60 डिफाइन एज माइनस V1 प्लस V2 सॉल्व अप टू V16. तो इस तरीके से, ठीक है. तो हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स 3 या 4 ऑर्डर से ज्यादा है, वो चाहे वो 5 ऑर्डर का हो, 6 ऑर्डर का हो, 7 ऑर्डर का हो, तो हमेशा एक मैट्रिक्स देना है 2. यहां पे हमारे पास 16 ऑर्डर का 16, यहां पे 16 एलिमेंट है, तो हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जिसके पास सिर्फ 4 एलिमेंट होंगे. अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब बेसिस लेंगे और बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे. तो ये कैसे करते हैं ऑलरेडी हमने पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ना. सॉल्यूशन नंबर 74. तो पहले देखते हैं डिफाइन कैसे किया. सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस के पास ऑर्डर पे सिर्फ 4 ही पेयर है. दैट इज बेसिस के पास सिर्फ 4 एलिमेंट है, V1 V2 V3 4, ये 4 एलिमेंट है बेसिस में. और ये डिफाइन इस तरीके से कर रहा है कि यहां का कोई भी एंट्री लेंगे, T ऑफ Vy इज नथिंग बट द Vi प्लस 1 एंड T ऑफ 16. T ऑफ 16 इज माइनस ऑफ V1 प्लस V2 सॉल्व अप टू V16. तो यहां पे सिर्फ 4 टर्म है. दैट मीन्स V4 इज नथिंग बट माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. इस तरीके से डिफाइन किया. अब हम मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, यहां पे बेसिस ले लेंगे. सपोज V1 T ऑफ V2 T ऑफ V3 T ऑफ V4 और इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे. किसके साथ? V1 V2 V3 V4 के साथ. बट V1 को कैसे डिफाइन किया है? Vi इज इक्वल टू Vi प्लस 1. मतलब यहां पे V1 है तो आंसर V2 आएगा. और V2 को अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 0 इंटू
V1, 1 into V2, 0 into V3, 0 into V4। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे V3 आ जाएगा, यहाँ पे V4 आ जाएगा। दैट मीन्स 0 into V1, 0 into V2, 1 into V3 एंड 0 into V4। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हियर 0 into 1 V1, 0 into V2, 0 into V3 एंड लास्ट में 1 into V4। अब V4 को कैसे डिफाइन किया है? माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो ये तो ऑलरेडी लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि माइनस 1 इंटू V1 माइनस 1 इंटू V2 माइनस 1 इंटू V3 माइनस 1 इंटू V4। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मैट्रिक्स ऑफ T इज नथिंग बट, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 4 क्रॉस 4। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो स्केलर है उसे हम किस में लिखते हैं? कॉलम वाइज। तो 0 1 0 0, सेकेंड वन इज 0 0 1 0 0 0 0 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। अब ध्यान देना, ये एक्चुअली में गेट का क्वेश्चन। तो गेट के क्वेश्चन की एक खासियत होती है कि गेट के क्वेश्चन में कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं यूज करता। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट गेट के क्वेश्चन में वो हमेशा एक लेवल अप होता है, यानी कि वो क्वेश्चन में एक और दो कॉन्सेप्ट को आपस में कंबाइन करता है। नेट के क्वेश्चन हो सकते हैं आपको डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट पे मिले, बट गेट के क्वेश्चन कभी भी एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं होता। पहले यहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अब यहां पे एक नया मैट्रिक्स यूज होगा, और यहां पे इस मैट्रिक्स, हमें इस मैट्रिक्स को देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ऑलरेडी ये टाइप का मैट्रिक्स सेकेंड या फोर्थ लेक्चर में हो चुका है, तो आप पिछला लेक्चर देख लेना। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये एक कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है। अब क्यों कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है? नाउ कॉम्पेनियन मैट्रिक्स इज, एक ट्रायंगल बना दो, जहां से एंट्री स्टार्ट हो रहा है एक ट्रायंगल बना दो, और उस ट्रायंगल के नीचे वाला एंट्री 1 1 और बाकी सारे एंट्री 0 होने चाहिए। और जहां से ट्रायंगल का ये जो वर्टाइसेस है वहां से नंबर स्टार्ट होंगे, जैसे कि -1 -1 -1, और यहां से जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल के नीचे वाले एंट्री 1 1। तो इसके टोटल 4 मैट्रिक्स बनते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे -1 -1 -1 लिख देंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और इसके नीचे वाले सारे 1 1। तो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो इस मैट्रिक्स को कंपेनियन मैट्रिक्स कहते हैं। और जो कंपेनियन मैट्रिक्स होता है, m ऑफ x इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं? ये कांस्टेंट टर्म होता है, मोनिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? जितने ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का? 4 क्रॉस 4 x⁴। और यहां पीछे से हम कोएफिशिएंट लिखना स्टार्ट करते हैं, और साइन को चेंज करके, मतलब यहां पे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, सारे एंट्री 1 है, और यहां से लेने चलना है। या फिर ये कांस्टेंट टर्म -1 का साइन चेंज +1, तो सारे के कोएफिशिएंट का साइन चेंज होकर यहां पर +1 होगा, और ये एक मोनिक पॉलिनोमियल x⁴। अब अगर हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है, या फिर इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं ये एक साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है। ये जो पॉलिनोमियल है ये एक साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है, और साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल हमेशा इरिड्यूसिबल होता है। साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर क्यू। रैशनल नंबर के ऊपर वो हमेशा इरिड्यूसिबल होता है, यानी कि क्यू के अंदर कभी उसके रूट नहीं होंगे। तो यहां पे देखो, पहला कॉन्सेप्ट तो यहां पे आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, सेकंड यहां पे कंपेनियन मैट्रिक्स पूछ रहा है, और थर्ड यहां पे आपको साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इसके सारे रूट डिफरेंट आएंगे साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। अब साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये x⁻p−1 x⁻p−2 सॉल्व अप टू x1 वेयर p इज अ प्राइम नंबर। तो
तो यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है और 5 से एक कम 4 से स्टार्ट होकर लास्ट 1 जा रहा है, तो इसलिए साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। अभी और एक रिजल्ट यूज करना है जो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है, एंड दैट इज कि अगर हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, देन डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा कांस्टेंट टर्म होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। तो जो यहां हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और एक बात याद रखना है, कंपेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन अ कंपेनियन मैट्रिक्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल आर सेम। तो डिटरमिनेंट ए कांस्टेंट टर्म होगा, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट 1 है। दैट मीन्स एक रिजल्ट ये कि जो डिटरमिनेंट 1 यानी नॉन जीरो, मतलब ए मैट्रिक्स कैसा होगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि टी सिंगुलर होगा, रॉन्ग, क्योंकि डिटरमिनेंट 1 है, क्योंकि लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, यानी कि डिटरमिनेंट 1, तो सिंगुलर तो हो नहीं सकता। टी इज सिंगुलर, तो टी सिंगुलर तो रॉन्ग। टी रेगुलर, रेगुलर का डेफिनेशन यहाँ पे इन्वर्टिबल है, यहाँ पे भी टी रेगुलर है, बट ये कह रहा है कि विथ रैशनल आइगन वैल्यू होंगे, और कह रहा है कि हैज नो रैशनल आइगन वैल्यू। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल का कि ये इरिड्यूसिबल है, यानी कि कोई भी रूट इसका रैशनल नहीं होगा। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि टी इज अ रेगुलर बट हैज अ नो रैशनल आइगन वैल्यू। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में। दैट मीन्स इन अ गेट यू नो तो आपको एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि नेट के क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है, बट गेट के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। गेट के क्वेश्चन में आपको 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिला के वो एक क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 कि ये IIT जैम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसी रिजल्ट का यूज करना है जो मैंने काफी क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में हो चुका है कि डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू और ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे -1 -2 +3 0 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन राइट हो सकता है, बट और यहाँ पे अगर इनका प्रोडक्ट लेंगे, आई थिंक यहाँ पे ये -2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अगर हम इसका सम लेंगे तो ये कितना होगा, -4, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां से अगर हम करें तो ये -3 -1 -4 + 2 -2 आ रहा है, और -2 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अरे सॉरी, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 -2 -3 +3 0 हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू 0, प्रोडक्ट करेंगे 6, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे इसका सम 0 नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट। यहां पे सम तो 0 हो रहा है, बट प्रोडक्ट करने पे -6 आ रहा है, बट प्रोडक्ट करने पे 6 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। यहां पे शायद यहाँ पे तो दोनों में से एक ऑप्शन चेंज कर देते, यहाँ पे 2 लिख दे, ठीक है। तो 3 + 1 5, 5 - 1 4, तो 4 आ गया। मीन्स हमारे पास ट्रेस 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। तो जिसमें ये ऑप्शन है -1 -2 3, ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहां पे इनका एडिशन करने पे 0 आ रहा है। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज 6। दैट मीन्स ए की प्रॉपर्टी चाहे ये डी या ए में होगा, बट यही वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। फिर से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, इस तरीके से मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, बट यहां पे नल स्पेस के बारे में पूछ रहा है और रेंज स्पेस के बारे में। नल स्पेस एंड रेंज स्पेस, और यहां पे पूछ रहा है कि डायमेंशन, नल स्पेस की डायमेंशन क्या होगी और रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन पूछे, पहले समझते नल स्पेस क्या होता है और
क्वेश्चन नंबर 76। जैसे 1 on 2 का कॉन्सेप्ट होता है, सेम इसी तरीके से मैट्रिक्स में या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नल स्पेस और रेंज स्पेस होते हैं। सपोज दो मैट्रिक्स है, मान लो इसके सारे एलिमेंट 0 के पास जा रहे हैं या फिर कुछ एलिमेंट 0 के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट 0 के पास जा रहे हैं उसे हम कहते हैं नल स्पेस। मीन्स इस वेक्टर के वो सारे एलिमेंट, सपोज वेक्टर स्पेस V एंड W, V के वो सारे वेक्टर सच दैट अगर इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, T ऑफ X की वैल्यू 0 के पास से। डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, all those vector of V such that their image goes to 0. That is definition of null space. Next is range space. We know that what is the range space? The image, all those Y belongs to W such that कि Y is a image of for some X belongs to B. Means जितने भी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज होंगे वो सारे W के एलिमेंट, यानी कि रेंज स्पेस जैसे ऑन टू फंक्शन में जो हमारा रेंज स्पेस होता है, यानी कि वो सारे एलिमेंट जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट होगा उन सारे एलिमेंट को इमेज हम यहां पे रेंज स्पेस कहते हैं। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गया। सेकेंड रिजल्ट याद रखना है, रैंक नलिटी थ्योरम। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस प्लस डायमेंशन, यहां पे डी मतलब डायमेंशन, ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम और डायमेंशन ऑफ V। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि कितने मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, या फिर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है डोमेन के अंदर उसका डायमेंशन क्या है। तो यहां पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कहां से कहां तक जा रहा है, R³ टू R³, दैट्स मीन्स वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन कितनी है 3। तो यहां पे हम लिख देंगे 3। अब ये दोनों फाइंड करना है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है नल स्पेस का, कि वो सारे वेक्टर बिलोंग करेंगे B को सच दैट T ऑफ X इज इक्वल टू 0। बट T ऑफ X को किस तरीके से डिफाइन किया है, T ऑफ X1 X2 X3 इज नथिंग बट X1 माइनस X2 X1 माइनस X2 0। अब V क्या है R³ मतलब इसके एलिमेंट कैसे होंगे, X1 X2 X3 बिलोंग्स टू R³ सच दैट T ऑफ X1 X2 X3 और जो इमेज है वो कैसे एलिमेंट है R³ के, तो यहां पे 0 मीन्स इस तरीके से डिफाइन होगा। दैट मीन्स वो सारे वेक्टर X1 X2 X3 सच दैट, अब इसको डिफाइन किस तरीके से किया है कि X1 माइनस X2 X1 माइनस X2 0 इज इक्वल टू 0 0 0। अब अगर इसे कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा X1 की वैल्यू X2, देयरफॉर हम X1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं X2 X2 X3। तो अगर हम इसका बेसिस निकालें तो बेसिस हमारे पास इस एलिमेंट को हम कैसे ले सकते हैं, यहां से X2 को कॉमन ले सकते हैं, 1 0 0 प्लस X3 0 0 1। मतलब हमारे पास बेसिस के अंदर, तो हम इस नल स्पेस को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिस के पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 0 0 0 1। तो यहां पे कितने वेक्टर है बेसिस V1 V2। तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 2, क्योंकि नल स्पेस के पास सिर्फ नल स्पेस के बेसिस के अंदर सिर्फ 2 वेक्टर, बेसिस मतलब इसके हर एक एलिमेंट को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं।
तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से, यानी कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, यहां पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल कितने, सिर्फ 2। तो यहां पे डायमेंशन ऑफ नलिटी, या फिर सिर्फ नलिटी कहते हैं, या फिर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना आ रहा है, 2। तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम, नल स्पेस कितना हो गया, 2। तो यहां पे जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब चेक करते कौन सा ऑप्शन राइट है। कह रहा है कि डायमेंशन नल स्पेस का 2 होगा, राइट। कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस का 2 होगा, रॉन्ग, क्योंकि 1 है। कह रहा है कि रेंज स्पेस और नलिटी स्पेस दोनों अलग है। जब दोनों का डायमेंशन ही सेम नहीं है तो सेट सेम हो ही नहीं सकते स्पेस। यहां पे ये कह रहा है कि नलिटी स्पेस सबसेट होगा रेंज स्पेस का, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट है और इसके बेसिस के अंदर 1 एलिमेंट है, यानी इसका डायमेंशन 2 है। तो डायमेंशन 2 तो डायमेंशन के अंदर कंटेन कर ही नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप का है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ग्रुप का ऑर्डर 14 है। तो इसमें मैं 2 या 3 लेक्चर ले चुका हूं, जिसमें हमने दिखाया कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर दिख रहा है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर दिख रहा है तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे फैक्टर निकालना। वी फर्स्ट ट्राई टू फैक्टर द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 77 सॉल्यूशन। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 14। फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 7। अब ये p इंटू क्यू के फॉर्म में है, तो 2 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स 2 डिवाइड कर रहा है 6 को। तो यहां पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो साइक्लिक और नॉन अबेलियन। बट हियर गिवन द नंबर ऑफ g इज नॉट अबेलियन, g इज नॉट अबेलियन। दैट मीन्स साइक्लिक वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। मीन्स ग्रुप तो नॉन एबेलियन है, एंड ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 14। एंड वी नो दैट कि इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 7, यानी ये किसके फॉर्म में हो गया, 2n के फॉर्म में हो गया। और ग्रुप का ऑर्डर अगर 2n के फॉर्म में है और वो ग्रुप एक ही ग्रुप है, तो हमेशा वो क्या होगा, D14, यानी कि D 2 इंटू 7। और D n का रिजल्ट याद रखना, सिंपल सा रिजल्ट है, क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ इतना पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2 ऑर्डर के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन dn इज इक्वल टू n प्लस 1 और n प्लस 1 कब होगा, जब n की वैल्यू इवन होगी, और n कब होगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी। तो यहां पे 14 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7, यानी कि n की वैल्यू 7 है जो कि ऑड है। तो यहां पे हमारे पास तो जो नंबर ऑफ n ऑड है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे, 7। तो यहां से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 7 है राइट होगा, डी और सी डी ऑप्शन रॉन्ग है। अब ये 7 कौन कौन से होंगे, जितने भी रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं ना, क्योंकि dn इज अ सिमेट्रिक ग्रुप एंड इन अ सिमेट्रिक देयर इज अ, इफ dn is a group of order 2n, then there are n number of reflection and n number of rotation. The every element of reflection has a order 2, यानी कि जितने भी रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। बट इवन के लिए वो एलिमेंट जिसका 180 डिग्री होता है तो उसकी भी ऑर्डर 2 होती है, इसीलिए इवन के अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है जिसका ऑर्डर 2 होता है, यानी कि n प्लस 1। बट अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है, ऑड है, तो उसके पास सिर्फ n नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही सिंपल है। ग्रुप का ऑर्डर 12 है और नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना है, साइक्लिक ग्रुप ये। तो याद रखना है G अगर एक साइक्लिक ग्रुप है, दैट मीन G इज अ साइक्लिक ग्रुप, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो उसको जनरेट करते हैं। तो नंबर ऑफ जनरेटर का फॉर्मूला होता है 5 ऑफ 12, और 5 ऑफ 12 यानी कि 12 को हम कैसे ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3,
दैट मीन्स फाइव ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 3। 2 स्क्वायर मतलब कैसे निकालते हैं, पी स्क्वायर पी रेस टू एन, पी रेस टू एन माइनस पी रेस टू एन माइनस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 रेस टू 1। 4 माइनस 2 यहाँ पे 2, 3 प्राइम नंबर है तो 1 कम 2, यानी कि 2 इंटू 2 4, डी ऑप्शन राइट होगा। मतलब 5 फंक्शन निकालना है, आइलर फंक्शन बस। अब क्वेश्चन नंबर 79 और 80 बहुत ही सिंपल है, ये आइलर के इक्वेशन पे है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम COV विच इज सिंपल बेस्ड ऑन अ रिजल्ट दैट इज आइलर इक्वेशन। तो आइलर के दो इक्वेशन है, थस आपको याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 79 एंड 18 विच इज बेस्ड ऑन सिंपल फर्स्ट इक्वेशन fy माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट का यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। तो हमारे पास f क्या होता है, ये हमारे पास f है, तो यहां पे सिंपल पुट कर देंगे। तो f को y से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, सिंपल y को ऐसे रखेंगे तो यहां पे ये 3x माइनस वाई, और y डैश का टर्म तो है ही नहीं, दैट मीन्स ये 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस वाई हो गया, यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2y साइड ये साइड आके मतलब 3/2x ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सिंपल ये फॉर्मूले के बेस पे होता है। तो y इज इक्वल टू 3x। अब ये इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पे कह रहा है कि y ऑफ 3 पुट करने पे 4 हाफ, यानी कि ये 9/2 है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम 3 पुट करते तो 3 3 9/2, बट ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट अगर यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो y ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है 3, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फंक्शनल। एक हमारे पास एक वेरिएशन फंक्शन दिया है कि आई ऑफ y इज इक्वल टू a टू b f ऑफ y टू y डैश वेयर y डैश इज अ डेरिवेटिव, और कंडीशन दिया है। और ये पूछ रहा है इसमें 4 इक्वेशन दिए, इसमें से कौन सा राइट होगा, कि f रिमेन कांस्टेंट होगा, या डेरिवेटिव f विथ रिस्पेक्ट टू y 0, या फिर f माइनस y इंटू डेल f बाय डेल y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर लास्ट में f माइनस y डैश डेल f अपॉन डेल y डैश इज कांस्टेंट। तो यहां पे हम यूज करेंगे आइलर का सेकंड इक्वेशन। सॉल्यूशन नंबर 80, सेकेंड इक्वेशन ऑफ दैट इज d बाय डी एक्स f माइनस y डैश डेल f बाय डेल y डैश माइनस डेल f बाय डेल x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास जो फंक्शन है y और y डैश के टर्म्स में, मतलब यहां पे x, तो यहां पे x है ही नहीं, तो देयरफॉर अगर हम f को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स d बाय डी एक्स f माइनस y डैश डेल f डेल y डैश इज इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन्स f माइनस y डैश डेल f बाय डेल y डैश इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो सकता है। ये हो गया। चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन राइट है। f रिमेन कांस्टेंट, रॉन्ग। b रिमेन b डेल f बाय डेल y इज इक्वल टू 0, रॉन्ग। f माइनस डेल, ये भी रॉन्ग। तो f माइनस y डैश डेल f बाय डेल y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, डी ऑप्शन राइट, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर पार्ट बी का क्वेश्चन है एंड CSI नेट का क्वेश्चन है। तो अप्लाइड के क्वेश्चन काफी सिंपल्स होते हैं और कुछ क्वेश्चन काफी लेंथी होते सिंपल है, बट कैलकुलेशन पार्ट काफी होता है। बट कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते COE में, या फिर कुछ कर्नल निकालने का जैसे कि इंटीग्रल इक्वेशन में, वो काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो वहां से आपका रैंक अगर आपको लाना है तो देखो, अगर आपको CSI या नेट क्वालिफाइड करना है तो रियल और अलजेब्रा इनफ है। आप रियल और
अलजेब्रा का अगर आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप वहां से नेट क्लियर कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर रैंक लाना है तो आपका अप्लाइड अच्छा होना चाहिए, अप्लाइड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा। तो ये था आज का लेक्चर। तो नाउ एंड आवर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।